महादेवः। I request the team of the students to recite Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युता शङ्करा अभितिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। I request Professor D.P. Singh, Chairperson, Board of Governors of Institute, to declare the 17th Annual Convocation 2020 of Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, open. This convocation of Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, has been called to confer degree upon the candidates who have been certified to be worthy of receiving the same. I hereby declare the 17th Annual Convocation 2020 open. I request Professor Ali Tripathi, Chairman, Senior and Director of the Institute, to address the degree recipients and others gathering. Honorable Minister of Education, Dr. Ramesh Pokhariyal Nishank ji, Chief Guest of the 17th Convocation of Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, Chairman Board of Governors, Professor D.P. Singh, members of the Board of Governors, members of the Academic Senate, esteemed faculty colleagues, staff members of the Institute, distinguished guests, friends from media, and dear degree recipients and their proud parents, ladies and gentlemen. Convocation is the most solemn event
in the life of a student. It marks the successful accomplishment of a specific program of study. It also affirms that the student have acquired a set of knowledge, skills, and attitude through a process of formal education based on learning, evaluation, and assessment. Hence, convocation is the gateway to a wide array of professional opportunities to explore and to excel. Today, we have assembled through online medium to award 861 BTech, 304 MTech, 83 MCA, 39 MBA, 18 MSc, and 92 PhD degrees to qualified candidates. We shall also award 44 Institute Gold Medals and 25 sponsored gold medals to the meritorious students. I congratulate all the graduating students and their parents for this accomplishment, which they have achieved after doing hard work with full dedication. Dear degree recipients, at this juncture, I share the pride and joy of your teachers and parents for your achievement. The Institute is in the Diamond Jubilee year of its establishment, and since its inception, it has crossed many milestones. Om Medham Me Devi Saraswati Adadatu. दिव्य गुणमयी ज्ञान शक्ति हमारी बुद्धि को पुष्ट करें, इस वेद मंत्र के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. Over the last 60 glorious years, the Institute has progressed in multiple directions. We have made strides in the field of dissemination of knowledge through quality teaching and research, and technology advancement through transferring developed technologies to industry. I would like to share with you all the major contributions that we have accomplished in the current year in spite of worldwide threat to human life through coronavirus. I am proud to share that our faculty members developed various devices and apps to safeguard from COVID, which includes Verilizer, face shield, sanitizer, etc. For the first time, we have been able to transfer 3 technologies to industry for manufacturing and sale. Needless to say that the infrastructure is a great enabler. It facilitates in smooth operation. It also enhances productivity and quality of work life. I share with great satisfaction on completion of many infrastructure projects that were pending for many years. A multi-storied boys hostel with over 1,000 capacity and girls hostel with a capacity of 350 beds are under construction. 48 new faculty apartments are also under construction. Although we could not allow students to be physically present on the campus, yet the spirit to learn, share, and grow is not dampened. I am proud to say that immediately after the complete lockdown was declared, the faculty members switched to online teaching and learning. All the students and faculty members were connected, and first online class was delivered on March 27th, just after 6 days. My dear friends, we know that alumni are the flag bearers of the glory of an institute. I am very proud to share that over the span of 60 years, the alumni of institute have headed many of PSUs, Maharatnas. They have also held high positions in many of the private and multinational corporate giants. From now onwards, you will also be an illustrious alumnus of this institute. It is imminent to recognize that we need a technology which is compassionate not only on human but on each and every aspect of our ecology and environment, including space. You have earned your degrees. You are also placed with various companies.
I charge you to work with sincerity and commitment. Let me again remind you that after passing out from this institute, you are going from partially protected to highly unprotected environment. And I am confident that you have acquired sufficient knowledge and overall training to handle very effectively the new environment. To conclude, I would share with you a prayer from Taittiriya Upanishad, which its first verse, Shanno Mitra Sham Varunah, Shanno Bhavat Maryama, Shanna Indro Brahaspati, Shanno Vishnu Rurukramah. It is a request for bliss and peace everywhere. It says, let the devas like Mitra, Varuna, Aryam, Brahaspati, and others who have been appointed by Paramatma to manage creation be a source of happiness for us and shower peace everywhere. We pray that may bliss come from everywhere. With these words, I wish you all a grand success in your future endeavors and happiness in life. Please stay connected with your alma mater. Jai Hind, Jai Bharat. I thank Professor Ari Tripathi, Director of the Institute, for enlightening about the latest developments and progress made by the Institute. We have witnessed a tremendous upsurge of academics, research and related activities in the Institute in the recent past. Now I request Professor D.P. Singh, Chairperson, Board of Governors of the Institute, to address the degree recipients and the distinguished guests. Distinguished Chief Guest of the 17th Convocation of Motilal Nehru National Institute of Technology, Honorable Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Minister of Education, Government of India, Professor Rajiv Tripathi, Director of the Institute, members of the Board of Governors and other academic bodies of MNIT, distinguished guests, teachers, non-teaching staff of the Institute, graduates, members of the press, ladies and gentlemen. It is my privilege and honor to address this learned gathering on this day. At the outset, I accord a warm welcome to our Honorable Minister for Education, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, for kindly accepting our request to address the graduating students and bless them. As Chairman of Board of Governors, I extend my heartiest congratulations to the graduating students, their parents, and the entire teaching fraternity. I expect the graduates to remember the promises they have made to their alma mater. Today, on this occasion, we all feel blessed that we are together to celebrate the success of our hard work and perseverance through these challenging times. With the outbreak of pandemic COVID-19 virus, we have witnessed new perspectives of survival and sustainability, which has reverberated and redefined the true meaning of education and learning. At this auspicious occasion, I would like to recall one of the greatest sons of the soil of this sacred city, Prayagraj, Mahamana Pandit Madan Mohan Malvi ji, a great patriot and educationist. I reckon started for the first time in India at Banaras Hindu University. He keenly felt the pain of India's poverty and pauperization under the British rule. As a representative of the Indian people in Indian Industrial Commission from 1916 to 18, and also in various intellectual forums, he quoted from various literary sources, the material, technological, and intellectual, showing superiority of ancient India and the supreme position engaged by Indians
in manufacturing as well as agriculture for thousands of years and up to the beginning of the 19th century. Once he said that if he had to start one faculty, that will be the faculty of science and technology, but supplemented by the faculty of theology and faculty of Indology. I feel the national education policy takes care of his thoughts by making education India centered and adopting the models of the ancient institutions like Nalanda and Taxila. Taking inspiration from such visionaries, the National Education Policy 2020 envisions an India centered education system that contributes directly to transforming our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. The new education policy 2020 further is the essence of Indian philosophy of holistic education as envisaged in Savidya Ya Vimuktaye. Dear students, always be proud of your rich heritage. Create a synergy with the spiritual wisdom that is the ethos of our education and learning system. Once you graduate, world is your school. Design your pedagogy to experiment and to learn in a relatively free environment, solve problems, and provide innovative solutions for the well being of humanity. It is time that we become the torchbearers and exemplify to the world the true essence of Indian ethos of knowledge and learning. I wish that the following shloka of Mahamana Madan Mohan Malviji be a guiding force to your life. न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम. I desire neither for crown nor for heaven. The only desire I cherish is the eradication of sorrows of suffering creatures. With these few words, I congratulate you once again on your achievement and wish you all the best in your future endeavor. I would like to conclude with the following quotes of Swami Vivekananda. Education is the manifestation of perfection already in man. All power is within you. Experience. Now I request Chairman Senate to please permit the award of degrees for Bachelor's of Technology or Master's Program and Doctoral Program. Let the candidates for the degrees be presented. Sir, I present the candidate who having certified the requirement for the degree of Bachelor of Technology in Biotechnology are considered worthy receiving the same. I recommend that they be admitted to the said degree. Aman Baser, Amit Sarmasika Yadav, Kesav Singh, Marapalli Vinay Kumar, Nitesh Saini, Prerna Rajput, Saurav Gaund, Sipra Chaudhary, Sonali Yadav, Astuti Gupta, Tarun Yadav, Tejasvi Bhaskar, Tejawat Ajit, Ujjwal Kumar, Uttam Kumar Pankaj, Viraj Mohit Mahavir, Vikas, Vinay Jaiswal, Vinay Kumar Saini, Jisan Ali, Abhishek Kasotia, Jyoti Sri Maurya, and Mayank Bhushan. Sir, I present the candidate who having certified requirement for the degree of Master of Technology in Biotechnology are considered worthy receiving the same. I recommend that they be admitted to the said degree. Barnali Hembram, Charita Dasore, Deepa Sharma, Mohammad Saqib Beg, Paulmi Roy, Pooja Singh, Rahul Dev Verma, Shivam Prakash. Sir, I present the candidate from Department of Biotechnology who having certified requirement for the degree of Doctor of Philosophy are considered worthy of the receiving the same. I recommend that they be admitted to the said degree. Vivek Kumar Yadav, Pradeep Kumar Singh, Rishi Kumar Verma, Kumari Vibha, Aishwarya Gautam, Pranav Tripathi, Amit Kumar Kuril, Manish Pratap Singh, Ashutosh Pandey, Sheetal Saini, Amit Chaudhary, Gitanjali.
Sir, I present the candidates who, having satisfied the requirement for the degree of Bachelor of Technology in Chemical Engineering, are considered worthy of receiving धर्मेंद्र सिंह, दुर्गेश नंदन, हिमांशु अग्रवाल, हिमांशु सिंगा, इंद्रजीत कुमार मिश्रा, जैसन सेम जॉयस, खरवार अभिषेक लालचंद, कोनचड़ा नागराजू, महेश मालव, मानसी जायसवाल, मृदुल त्रिपाठी, निकिता यादव, नीलंजना सिंघा, रमन भास्कर, रश्मि गुप्ता, रोजी कुमारी, संजीव कुमार, शिवानी यादव, शिवांक दीक्षित, शुभम शर्मा, श्वेता जायसवाल, त्रिलोक पाटिल, उत्कर्ष माथुर, वैभव शर्मा, विभस कुमार, विवेक कुमार यादव, लव कुमार मिश्रा, पारस शुक्ला, ललित नागर, मोहम्मद सदमान आयुबी, श्याम दत्त. Sir, I present the candidates who, having satisfied the requirement for the degree of Master of Technology in Chemical Engineering, are considered worthy of receiving the same. I recommend that they be admitted to the said degree. अमन कुमार, अरविंद जायसवाल, गजेरा जविन रमेश भाई, कपिल कुमार साहू, कोमल वर्मा, मल्ला आकाश, निखिल जायसवाल, प्रवीण दुबे, राजेश कुमार, रश्मि प्रिया, रूपांजलि सिंह. Sir, I present the candidates from the Department of Chemical Engineering who, having satisfied the requirement for the degree of Doctor of Philosophy, are considered worthy of receiving the same. I recommend that they be admitted to the said degree. काजल गौतम, शशिवाला गौतम, प्रताप सिंह. I present the candidates who, having satisfied the requirements for the degree of Bachelor of Technology in Civil Engineering, are considered worthy of receiving the same. I recommend that they be admitted to the said degree. आशीष कुमार रंजन, आपसा सईद, अभिनव रेड्डी सिंह रेड्डी, आदित्य राठौर, अखंड प्रताप सिंह, अखिल कुमार यादव, अखिलेश कुमार, एलेन सुरेश, अमनदीप, अमरकांत शुक्ल, अमित कुमार, अमित कुमार श्रीवास्तव, अंशिका सिंह, आर्यन मिश्र, आशुतोष सिंह, चंदन पाठक, चंद्रकांत वर्मा, देवांश सिंह, दीक्षा दीक्षित, गगन गुप्ता, गणेश दत्ता, गौरव मौर्य, हरिनाथ सिंह, हर्ष चौधरी, के सूर्य चक्रवर्ती, कुलदीप बामू, मधुर अग्रवाल, महेश चंद्र वर्मा, मकरंद मंजुल सांडिल्य, मनीष कुमार बंगालिया,
मैत्रंजन मीना, मीन कुमार चतुर्वेदी, मोहित ड्यूलेट, मोहित गुप्ता, मोनू राज, नीलेश कुमार गुप्ता, नीरज कुमार शर्मा, निशांत राय, नितिन कुमार झा, पंकज, पार्वती अजयन पोयारा, प्रकल्प प्रकाश, प्रांशु साहू, प्रतीक गोस्वामी, प्रेरणा गुप्ता, पुष्पेंद्र सिंह, राहुल अग्निहोत्री, रजत कुमार श्रीवास्तव, राज कुमार मौर्य, राकेश कुमार, रंजीत शर्मा, रेणु मीना, रिचिका सिंह, ऋषभ अग्रवाल, ऋषव कुमार, रोहित राज। Sir, I present the candidates who, having satisfied the requirements for the degree of Master of Technology in Environmental Engineering, are considered worthy of receiving the same. I recommend that they be admitted to the said degree. अभिषेक भट्ट, अभिषेक कुमार सिंह, अंकित प्रकाश, मेघावत नरहरि, रवि कुमार सिंह, सविता वर्मा, सेब खातुल्ला, सोनू, तान्या, विनय सचान, अम्बरीश कुमार, दीपक कुमार सिंह, रवि जोशी। That they be admitted to the said degree. अभिनव सिंह, अभिषेक झा, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, आदित्य कुमार गौतम, आदित्य शर्मा, अदनान अंसारी, आकाश दुबे, आकाश कौशल, आकाश यादव, अखिल जैन, अखिलेश प्रताप सिंह, आलोक प्रताप सिंह, अमन कुमार अग्रवाल, अमित जैन, अमृत आनंद, अमूल्य गौर, अनिकेत कुमार, अनिरुद्ध वेंकटेश, अंकित चौधरी, अंकित कुमार मौर्य, अंकित वर्मा, अनमोल वर्मा, आराधिता भट्टाचार्य, अरईश आफ्ताब, अर्णव आनंद, अरुण वर्मा, आशीष गोपाल हतिमरे, आशुतोष शुक्ला, अथर्व विवेकानंद मितकर, अतुल प्रताप सिंह, अविरज सिंह, आयुष कुशवाहा, भाविशी मिलन रजनीकांत, बेंदी वैष्णवी, भुवनेश चावला, भुकिया प्रवीण प्रकाश, चेरुकुरी लक्ष्मी लहरी,
चेतन स्वरूप मुदगल, दीपक कुमार, दीपांश गोयल, देवरे वेंकटेश, शुभम राव, शुभम यादव, शुभ्रा चौधरी, सिद्धार्थ मजूमदार, सोमेश गुप्ता, स्पर्श जोशी, स्पर्श मित्तल, श्रीराम खंडेलवाल, सुनील कुमार, सनी कुमार, सूरज कुमार मधेश. Candidates who having satisfied the requirements for the degree of Bachelor of Technology, Information Technology are considered worthy of receiving the same. I recommend that they be admitted to the said degree. आकाश वर्मा, आयुष चौहान, अभिनव, अभिषेक दीक्षित, अभिषेक कुमार, आदिति बोरा, अजीत प्रसाद, आकांक्षा कुमारी, अक्षत अस्थाना, अक्षत चतुर्वेदी, अक्षय कुमार सिंह, आलोक कुमार, अनन्या पांडे, अंकित कुमार मिश्र, अंकित मिश्र, अंशुल फतवानी, अनुकूल जोशी, अनुराग भारती, अर्चित सिंह, अर्नव तिवारी, आर्यन खन्ना, आयुष गुप्ता, बगाड़े अंकित मनोज, चारू अस्थाना, दीक्षा खटवानी, दीपेश आचार्य, धीरेन्द्र कुमार, दिवाकर वर्मा, गौरव राज, आकांक्षा त्रिपाठी, आशुतोष झा, भास्वती बर्मन, दीपक कुमार, देवांशी बंसल, लथुमा ब्रह्मा, मोहम्मद हुसम मेदी, प्रतीक पाटिल, राहुल कुमार वर्मा, आदित्य भावसार, ऐश्वर्य सडाना, आकाश गुप्ता, अक्षय रजनी, अमल कुमार चौबे, अंजलि, अंकित मिश्रा. आशीष श्रीनेत, अभिनव शुक्ला, अभिषेक कुमार गुप्ता, अभिषेक उपाध्याय, आदित्य कुमार, अजय कुमार सांखला, आकाश मिश्रा, आकाश साहनी, अभिषेक गौतम, अभिषेक पॉल, अचल कुमार, आदित्य गुप्ता, आदित्य सिंह. Institute, Honorable Minister of Education, Government of India, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji. He has already joined the program. Now I request Professor Rajiv Tripathi, Director and Chairman Senate of the Institute, to welcome our chief guest, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji. मैं संस्थान परिवार की ओर से एवं स्वयं अपनी ओर से आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का तीर्थराज प्रयाग की पवित्र पावन भूमि से वर्चुअल मोड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्रीमान, हम आपके विशेष रूप से आभारी हैं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आज के इस पुनीत अवसर पर दीक्षांत अभिभाषण के रूप में
हमारे छात्रों को आशीर्वचन देने के लिए सहमत हुए एवं संस्थान को आपका मार्गदर्शन भी मिलेगा। तीर्थराज प्रयाग गंगा, यमुना एवं सरस्वती का पावन संगम है। अदृश्य सरस्वती के रूप में प्रयागराज में शिक्षा एवं शोध के रूप में अनवरत प्रवाहित हो रही हैं। समय समय पर देश और समाज को दिशा देने वाले शहर में यह संस्थान विगत 60 वर्षों से लगातार तकनीकी शिक्षा एवं शोध के कार्यों में सतत प्रयास कर रहा है। महोदय, आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन में इस देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पर पूरे पठन पाठन एवं शिक्षण संस्थानों को एक नई दिशा मिली है, जो इस देश को पुनः एक बार विश्व गुरु की ओर तेजी से ले जाएगी। श्रीमान, मुझे हर्ष है कि यह संस्थान उस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। विगत दिनों में हमारे संस्थान में नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई। संस्थान का यह मत है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का मैंडेट है, उसमें देश के सारे NITs अपनी अहम भूमिका आसानी से निभा सकते हैं, क्योंकि सारे NITs में 50% या उससे अधिक उस प्रदेश के छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। तो इस सॉलिड बैकग्राउंड के साथ सारे NITs में इसको इम्प्लीमेंट करना एक आसान तरीका हो सकता है। इस विषय में हमारे संस्थान ने एक दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया है और हम लोग अपने स्तर पर इसको अपनी क्षेत्रीय भाषा, जो हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा और हम लोग इसको मूर्त रूप अगले सत्र में दे पाएंगे। विगत वर्ष संस्थान के लिए बहुत उपयोगी था। कोरोना काल में भी संस्थान के अध्यापकों एवं छात्रों ने पूर्ण मनोयोग से संस्थान का ऑनलाइन टीचिंग एवं लर्निंग परीक्षा संबंधित कार्य निर्बाध रूप से समय पर संपन्न किया। संस्थान के अध्यापकों द्वारा विकसित इक्विपमेंट और ऐप्स में कोरोना से लड़ने में बहुत मददगार साबित हुई। मुझे हर्ष है कि संस्थान ने पहली बार विगत 8 महीनों में ही 3 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किए, जो कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए हम लोग दे पाए। इसके साथ ही संस्थान द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन किया गया, जिसे समय समय पर आपके द्वारा भी ट्विटर के माध्यम से सराहा गया। इस वर्ष 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया का दायित्व आपके द्वारा इस संस्थान को दिया गया, जिसके तहत सारे NITs, IIITs एवं अन्य संस्थानों में प्रवेश का दायित्व CSAT 2020 के रूप में मिला। मुझे खुशी है कि बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी हमारे अध्यापकों की टीम ने बहुत सफलतापूर्वक सारी प्रवेश प्रक्रिया पहली बार पूरी तरह ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई। विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार सबसे अधिक सीटें इन संस्थानों में भरी गईं। देश के सारे NITs की 23,509 सीटों में से 23,278 सीटें कन्फर्म हुई और लगभग
0.98% ही वैकेंसी रही। NITs में सीट कंफर्मेशन के बाद जो फाइनल रिपोर्टिंग में बच्चे नहीं पहुंच पाए, उसको मिला करके टोटल वैकेंसीज 2% रही, जो कि विगत वर्षों की तुलना में करीब 1% कम है, 1.24%। यदि पूरे सिस्टम को देखें तो NITs, IIITs और अन्य संस्थानों को मिलाने पर कुल वैकेंसी 5.5% रही, जो कि विगत वर्षों की तुलना में लगभग 3% कम है। इसका सारा श्रेय विभिन्न अवसरों पर आपके द्वारा छात्रों के हित में लिए गए नीतिगत निर्णय और बदलाव को जाता है। संस्थान के सभी पूरा छात्रों में विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। अभी के चेयरमैन रेलवे बोर्ड एवं प्रथम CEO श्री विनोद यादव जी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन श्री विश्वकर्मा जी और ऐसे अनेकों सफल टेक्नोक्रेट्स इसी संस्था के पूरा छात्र रहे हैं। संस्थान के पूरा छात्रों एवं अभी के छात्रों से सीधा संवाद स्थापित है। उनका मार्गदर्शन अभी के छात्रों को सतत मिलता रहता है। पूरा छात्रों के द्वारा स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ही सफलता से चलाया जा रहा है। संस्थान के छात्रों द्वारा आसपास की बस्तियों में रहने वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के परिवार के बच्चों को सायंकाल 6 से 8 बजे तक संस्थान परिसर में पढ़ाया जाता है। उनमें से कुछ बच्चों का प्रवेश भी विभिन्न स्कूलों में संस्थान के इन्हीं छात्रों द्वारा कराया गया है। इस पुनीत विद्यादान में पूरा छात्रों का भी पूरा सहयोग मिलता है। महोदय, कोरोना काल में भी 2020 के पास आउट छात्रों को लगभग 88% प्लेसमेंट हुआ है। यह हमारे छात्रों की प्रतिभा का एक इंडिकेटर है। संस्थान के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ऑनलाइन काउंसलिंग की रेगुलर व्यवस्था है, जिसमें कि प्रोफेशनल काउंसलर्स द्वारा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार एवं रविवार को सेशन चलाया जाता है। विगत कई वर्षों से संस्थान में ढांचागत सुधार की बहुत आवश्यकता थी। आपके मार्गदर्शन से एवं आपके मंत्रालय के पूर्ण सहयोग से 2 नए छात्रावासों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 48 फैकल्टी अपार्टमेंट्स का भी निर्माण शुरू हो गया है। इसके बाद भी संस्थान में छात्रावासों और विभागों को विकसित करने की नितांत आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में ये संस्थान आगे निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहेगा। इन्हीं सूक्ष्म शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ एवं सादर अनुरोध करता हूँ कि छात्रों को ओवरऑल इंस्टीट्यूट स्वर्ण पदक वर्चुअल मोड में प्रदान करें। Sir, I present the candidates recommended for the award of Institute Gold Medals. Institute Gold Medal awarded to Ms. Garima Goyal of BTech Electronics and Communication Engineering for standing first amongst the students of all branches of Institute Final Examination 2020. Gold medals for undergraduate examination. Gold medal awarded to Mr. Akshat Jain of BTech Civil Engineering for standing first at BTech third year examination 2020. Gold medal awarded to Mr. Aryan Mittal of BTech Computer Science and Engineering for standing first at BTech second year examination 2020.
Gold medal awarded to Mr. Anubhav Rajput of BTech Computer Science and Engineering for standing first at BTech first year examination 2020. Gold medal awarded to Mr. Deepanshu Thakur of BTech Computer Science and Engineering for standing first at BTech first year examination 2020. धन्यवाद महोदय। हमारा ये संस्थान लगभग 222 एकड़ की जमीन में स्थापित है और संस्थान के 3 भिन्न भिन्न परिसर हैं। एकेडमिक परिसर, आवासीय परिसर और छात्रावास परिसर। आवासीय परिसर में ही छात्राओं के छात्रावासों की व्यवस्था है। ये तीनों परिसर शुरू से ही एक रेलवे लाइन जो कि प्रयागराज से लखनऊ को कनेक्ट करती है उससे डिवाइडेड है। उससे सभी अध्यापकों, कर्मचारियों और विशेषकर छात्राओं को जो आवासीय परिसर में हैं बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। पिछले वर्ष हम लोगों ने मंत्रालय के सहयोग से एक भूमिगत पार पथ का निर्माण प्रारंभ किया। मुझे खुशी है कि आज वो भूमिगत पार पथ तैयार है और इस हीरक जयंती वर्ष में इस भूमिगत पार पथ को हीरक जयंती भूमिगत पार पथ के रूप में नामकरण किया गया है और आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस भूमिगत पार पथ का उद्घाटन करें। चला धन्यवाद श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। वैसे तो माननीय मंत्री जी की ख्याति और व्यक्तित्व आज किसी से छिपी नहीं है, किंतु इस समारोह में उपस्थित लोगों को मैं संक्षिप्त में माननीय मंत्री जी का परिचय कराना चाहता हूं। हमारे देश के शिक्षा मंत्री के पद पर श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री वीपी सिंह, श्री अर्जुन सिंह, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व वाले राजनीतिज्ञ कार्य कर चुके हैं। इस पद पर आसीन व्यक्ति न सिर्फ राजनीति में बल्कि शिक्षा एवं संस्कृत में गहरी रुचि रखने वाला होना चाहिए। इस समय इस पद पर माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का चुनाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत सोच विचार कर किया गया है। डॉक्टर निशंक 1991 में कर्णप्रयाग से पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उसके बाद लगातार 2 बार 1993 और 1996 में फिर से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। उन्हें 1997 में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा
दिया गया। उन्हें उत्तरांचल विकास विभाग का मंत्री बनाया गया और 1998 में उन्हें संस्कृत और धर्मस्व मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। डॉक्टर निशंक की उत्कृष्ट सेवा क्षमता को देखते नेतृत्व क्षमता को देखते हुए 2000 में जब पहली बार उत्तराखंड की अलग सरकार बनी, तब एक बार फिर
जिम्मेदारी दी गई। उन्हें वित्त, ग्राम विकास, चिकित्सा सहित 12 विभागों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद माननीय निशंक जी मार्च 2007 से लेकर जून 2009 तक उत्तराखंड सरकार में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कैबिनेट मंत्री रहे। जून में ही डॉक्टर निशंक को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया और वे इस पद पर 1911 तक बने रहे। वे उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री रहे। 2011 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और इस पद पर वो 2013 तक रहे। इसके बाद 2014 में माननीय डॉक्टर निशंक ने सरकार के कद्दावर नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत को हराकर हरिद्वार लोकसभा से पार्टी को सीट जितवाई। तब से लेकर 2019 तक उन्हें लोकसभा की सरकारी आश्वासन समिति का सभापति के पद पर भी रहे। एक बेहद गरीब परिवार से आने वाले माननीय मंत्री जी की शिक्षा के प्रति लगन इसी बात से जानी जा सकती है कि वो पढ़ने के लिए 7 किलोमीटर लंबे कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करते थे। डॉक्टर निशंक न सिर्फ एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि एक समर्थ लेखक भी हैं। रहते हुए भी लेखन का काम जारी रखा और वो 75 से ज़्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया और भारत में 10 से ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित हुई है। इन 75 किताबों में काव्य संग्रह और कथा संग्रह शामिल है और उनमें से बहुत सी रचनाओं का अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी, जर्मन, फ्रेंच आदि कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। डॉक्टर निशंक द्वारा रचित पहला काव्य संग्रह समर्पण 1983 में प्रकाशित हुआ था, जिसका लोकार्पण पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने किया था। माननीय मंत्री जी के सम्मान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि डॉक्टर निशंक दुनिया के पहले ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनमें राजनीति, साहित्य और संस्कृत का एक समागम देखने को मिलता है। माननीय मंत्री जी की पुस्तकों का अनावरण पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सहित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जैसे सम्मानित राजनीतिज्ञों ने भी किया है एवं मंत्री जी की रचनाओं को सराहा है। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि स्वयं साहित्य की और कविताओं की बहुत अच्छी परख रखते थे, ने एक समारोह के दौरान माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा राजनीतिज्ञ हो जो राजनीति और साहित्य दोनों में एक साथ सक्रिय हो। डॉक्टर निशंक देश के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनकी 25 से ज़्यादा रचनाओं पर शोध चल रहा है और छात्र PhD और DLit के थीसिस तैयार कर रहे हैं। निशंक जी पर 7 शोध एवं 7 लघु शोध हो चुके हैं, जबकि 10 शोध और 2 DLit चल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय संभालने वाले श्री निशंक ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी सम्मान मिला है। जहां एक ओर माननीय मंत्री जी को भूटान, युगांडा, नेपाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों द्वारा सम्मान मिला है, वहीं उनकी साहित्यिक कला को UAE, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, यूक्रेन, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड में सम्मानित किया जा चुका है।
देश के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक की कमान संभालने एवं देश विदेशों से सम्मानित होने के बावजूद भी माननीय डॉक्टर निशंक जी मृदुभाषी होने के साथ साथ बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और इतने सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद आज भी स्वयं देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और पूरे दिन में सिर्फ 4.5 घंटे ही विश्राम करते हैं। मान्यवर, हम सबका यह सौभाग्य है कि ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी माननीय मंत्री जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हम लोगों के बीच हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर अपना दीक्षांत अभिभाषण करेंगे। अब मैं माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि दीक्षांत अभिभाषण के रूप में उपाधि एवं मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद दें एवं संस्थान को भी अपना मार्गदर्शन दें। माननीय मंत्री जी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज की 17वें दीक्षांत समारोह में मैं सबसे पहले तो अपने अतिथियों का जो बाहर से जुड़े हैं उनका अभिनंदन करता हूं और उसके बाद इस संस्थान के बीओजी के चेयरमैन प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह जी और संस्थान के यशस्वी निदेशक आचार्य राजीव त्रिपाठी जी, इस संस्थान के अधिष्ठाता शैक्षिक आचार्य रविंद्र कुमार जी, संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर सर्वेश कुमार तिवारी, सभी मंचासीन विद्वत्गण, प्रोफेसर्स, संकाय अध्यक्ष, सभी संकाय, सभी अध्यापक वर्ग, ये परिवार के सभी अधिकारी कर्मचारी गण और प्रिय छात्र छात्राओं और आदरणीय अभिभावकगण, मैं समझता हूँ और मेरे पूर्व छात्र भी निश्चित रूप में 60 वर्षों की इस अनवरत यात्रा में जो हजारों लाखों छात्र आज देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उन सब को भी मैं इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आज मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज ये ऐसे क्षण हैं जब हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है। ये आज जो भुलाए आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी आधारशिला बन करके आज के ये क्षण आपके जीवन में आए हैं, जो संजोने की जिनको हमेशा ज़रूरत होगी आपको। आप थोड़ा सा भी याद कर रहे होंगे कि जब इलाहाबाद जैसे NIT में आपका प्रवेश हुआ होगा, उस समय जब नहीं शुरुआती दौर में कि हो जाता तो बहुत अच्छा होता, कितने सवालों से उस समय आप गुजर रहे होंगे और जब आपका प्रवेश इस महत्वपूर्ण संस्थान में हुआ होगा तो उस समय की जो आपकी सोच है, वो जो आपके मन की गुदगुदाहट है, वो खुशी है, उसका और आज के दिन का ये बेहद समन्वय, जो ये यात्रा आपके गुरुजनों के सानिध्य में आपने एक लंबे समय तक शिक्षा ग्रहण किया है। आज दीक्षांत समारोह है। वैसे तो दीक्षा का अंत कभी नहीं होता, लेकिन हाँ, एक बार जो इस संस्थान में आचार्यों के सानिध्य में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, अब आपको मैदान में जाना है और आज से वो क्षण आप डिग्री लेकर के एक योद्धा के रूप में ये डिग्री प्राप्त कर आप आपको ये मोहर लग रही है कि हाँ, आप योद्धा, NIT के योद्धा के रूप में अब मैदान में निकल रहे हैं। आपके सामने पूरा मैदान खाली है और आज इन क्षणों के साक्षी बनकर के आप यहाँ से जो दीक्षा लेकर के जा रहे हैं, आज आपके जीवन का ये उत्सव है और स्वाभाविक ही है। आपके जीवन का उत्सव है तो आपसे जुड़े हैं आपके अभिभावक, आपसे जुड़े हैं आपके आचार्यगण।
या अभिभावक और आचार्यगण के बीच की ये जो आपकी खुशी का ये अवसर है, हम सब के लिए एक अविस्मरणीय क्षण है। मैं इस अवसर पर आपके अभिभावकों को और आपके सभी आचार्यगण को, संस्थान के निदेशक और म्यूजिक के चेयरमैन को और आपको सबको मैं बधाई देने के लिए आज आपके बीच आया हूँ। आपको मालूम है कि आप प्रयागराज में हैं और जब प्रयागराज में आप आए होंगे तो तमाम आप ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सभी बिंदुओं से होकर के आपने सोचा होगा, विचार किया होगा और आप उस विचार और मंथन के बाद वर्षों की साधना के उपरांत आज आप अपनी जो शक्ति पुंज है उसको लेकर के आप मैदान में आप जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अभी तक बहुत सारे सवाल आपके मन मस्तिष्क में थे, वो सवाल का जवाब आप देते थे, अन्यथा उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके अध्यापक गण आपके पास होते थे और आपको उन सवालों का जवाब भी देना पड़ता था। एक निश्चित सीमा थी सवालों के, एक निश्चित सीमा थी जवाबों के, लेकिन आज के बाद तमाम प्रकार के आपकी जिंदगी में सवाल खड़े होंगे और जवाब देने के लिए स्वयं आपको खड़ा रहना पड़ेगा। और स्वाभाविक है उन सवालों के जवाब देते समय आपको यहाँ का जो ज्ञान आपने अर्जन किया है वो हर कदम पर एक चट्टान की तरह एक शक्तिशाली एक ऐसी शक्ति के रूप में आपके अंदर प्रवेश करती रहेगी जो उनका उत्तर देने के लिए आपको सक्षम करती रहेगी। मेरी शुभकामना है कि आप आज यहाँ से जब निकल रहे हैं तो आप एक योद्धा की तरह जाएंगे, खुशी, हंसी और उल्लास के साथ और यहाँ से निकलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि उनको दीक्षांत समारोह है, इस समय 2-3 बिंदुओं को लेकर के आप जरूर जाएंगे। ये कभी भूलने की जरूरत नहीं है कि मेरा देश विश्व गुरु रहा है। अभी जब निदेशक महोदय अपनी बातों को कह रहे थे कि उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा है कि ये देश विश्व गुरु रहा है। हाँ, तक्षशिला और नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय केवल मेरे हिंदुस्तान में थे, पूरी दुनिया में, और जिसके बारे में कहा एतद् देश प्रसुत से सकाशाग्र जर्मना स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये सारी पृथ्वी के लोग मेरे देश में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, जीवन दर्शन और जीवन मूल्यों को सीखने के लिए आते थे। का मतलब ये कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की लीडरशिप और क्षेत्र में मिली है, वही हिंदुस्तान है मेरा ये। इसलिए पहला विषय तो ये, मैं उस हिंदुस्तान का वासी हूँ, मैं उस भारत का बेटा हूँ, उस भारत माँ का पुत्र पुत्री हूँ जिसने पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में माना है। और अयम मुझा परो व्यक्ति गणना लघु चेतसा मुदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। इस पूरी वसुधा को अपने परिवार के रूप में माना है, पूरे संसार को अपने परिवार के रूप में माना है। ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है। विजन यदि पूरे विश्व को अपना परिवार मानना है, यदि विजन माता भूमि पुत्रों पृथ्व्या है कि ये पूरी धरती माँ है और उसमें पैदा होने वाला हर जीव जंतु प्राणी मेरा हिस्सा है, मेरा भाई और बहन है, हम सब एक परिवार के लोग हैं। ये है हमारा विजन और उसको भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे कि जब तक धरती पर एक इंसान भी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये हमारा मिशन और इस मिशन के लिए हम चारों दिशाओं में जाएंगे, हर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ेंगे। लेकिन हमारा विजन और हमारा मिशन बहुत साफ है। पूरी वाले देश यदि पूरी दुनिया को मार्केट कहेंगे तो वो कम से कम भारत की धरती उसको, उस दुनिया को मार्केट कहने से उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हम दुनिया को परिवार मानते हैं। हम जानते हैं कि बाजार में व्यापार होता है, परिवार में प्यार होता है। इस प्यार से हम पूरी दुनिया को एकजुट होकर शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए ये भाव 24 घंटे हमारे मन और मस्तिष्क पर बना रहे। निश्चित रूप में वो शक्ति हमें अर्जित होगी जब हम दूसरे के दुख को, त्रासदी को, दूसरे की परेशानी और संकटों को दूर करने का सामर्थ्य अपने में खड़ा करके और हम भारत का माथा उन्नत कर सके। और इसलिए ये जरूरी है। मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि हर पल हर क्षण इन चीजों को आप अपने में संजो करके रखेंगे। मुझे भरोसा है कि यही चीज जो हमने कहा असतो मां सदगमया, हमें
हमेशा चाहे देर सही लेकिन सत्य की नजर रही है। अभी भी आपने जब दीक्षांत के रूप में अपने गुलाबी कुलपति जी से डायरेक्टर साहब से जो अभी दीक्षा ली है, उसमें तमाम चीजें सत्य के बारे में बोला गया। हम वो देश हैं जिसने तमसो महा ज्योतिर्गमय की बात की है। नए हमें अंधकार को मिटाएंगे, हमें ताकत होनी चाहिए। अंधकार को वही मिटा सकता है जिसके मन में कहीं ना कहीं आग होगी, वो ऐसी आग और अंधेरे को मिटाने की ताकत रख सकती है। और ये ताकत आप में आनी है, ये ताकत आपके अंदर ऊर्जा के रूप में संस्थान से जो आपको दीक्षा मिली है वो ताकत उसमें होगी। मुझे भरोसा है कि आज का ये अविस्मरणीय क्षण आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये उत्सव सामान्य उत्सव नहीं है, ये उत्सव भारत के भविष्य का उत्सव है। ये सामान्य उत्सव नहीं है, ये दुनिया को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का अवसर है, ये वो उत्सव है। और इसलिए जो मेरा भारत विश्व गुरु रहा है, उस भारत के विश्व गुरु के एक दुर्ग वाहक के रूप में आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, ऐसे में अपेक्षा कर रहा हूँ देश के शिक्षा मंत्री के नाते भी। मुझे लगता है कि जिस तीर्थराज में आप हैं, मेरा सौभाग्य है मेरे उत्तर प्रदेश से और इस तीर्थ ये प्रयाग से मेरा बहुत अभी संबंध रहा है। मैं बहुत छोटी आए हुए उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं दो तीन बार विधायक रहा और दो बार मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूँ। मैं जहाँ कल्याण सिंह जी की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री था, फिर रामकाज गुप्त जी की सरकार में भी उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्री के रूप में मैंने काम देखा, तब मैं महसूस कर सकता हूँ कि प्रयागराज की कितनी बड़ी ताकत है। मेरे छात्रों को आप इधर से निकल रहे हैं, ये प्रयागराज भी आपके मन मस्तिष्क में 24 घंटे टूटता रहना चाहिए। वो आपको ताकत देगा प्रयागराज, क्योंकि आपको मालूम है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो त्रिमूर्ति के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत में उत्कृष्ट यज्ञ करने के लिए इस पृथ्वी पर कोई स्थान का चयन किया था, वो यही प्रयागराज है। और इसलिए इसमें ताकत है, इसमें क्षमता है। आपको मालूम होगा कि हम जो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से स्थान का महत्व, दिशाओं का महत्व और उसमें वैज्ञानिक विश्लेषण है। यदि हमारा जो पुरातन जो हमारी संस्कृति की और जो भारतीय ज्ञान की परंपराएं थी वो सामान्य परंपराएं नहीं थी, वो वैज्ञानिक परंपराओं पर निर्भर करता था। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वो स्थान है जिसको हमेशा आपको अपने जो दुनिया के पवित्रतम स्थानों में एक प्रयागराज है, ये पवित्रता के मन मस्तिष्क में छाई रहनी चाहिए। ये पवित्रता, ये अकलुषिता और ये जो तीनों का संगम है, जो तीनों नदियों का संगम है, इन पवित्र नदियों का संगम है जो बहुत दूर तक बड़ा संदेश देती है मानवता के लिए। ये पवित्रता, अकलुषिता आपने हर क्षण हर पल बनी रहे, ये भी मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। आपको ये भी मालूम है कि यदि आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो भारत की स्वतंत्रता में भी इस प्रयागराज का, इस स्थान का कितना बड़ा महत्व था। आपको सबको मालूम है कि जहाँ 1920 में महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत हुई इधर से, वहीं 1931 में चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम सेनानी के रूप में जिस तरीके से आया और जिस तरीके से देश के आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी आहुति दी, आज भी ये जो आजाद पार्क है, अल्फ्रेड पार्क, जो इस बात की हमेशा याद दिलाता है इस देश की आज़ादी, ये देश विश्व के लिए शिखर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विश्व में सुख शांति और समृद्धि की यात्रा हिंदुस्तान से होकर के गुजरती है। जब तक हिंदुस्तान ताकतवर नहीं होगा तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि शांति के प्रतीक के रूप में और विज्ञान, ज्ञान और विजन के प्रतीक के रूप में कहीं ना कहीं भारतवर्ष पूरी दुनिया में अलग स्थान रखता है। और इसलिए मैंने कहा कि गंगा, यमुना और सरस्वती के ये संगम पर ये जो त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी भी आप जब यहाँ से निकल रहे हैं तो जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी उस पवित्रता को लेकर के शक्ति का प्रतीक बन जाती है। वहीं आज इस NIT से निकल करके आप प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान, इन तीनों के रूप में एक ऐसी त्रिवेणी के रूप में आप पूरे देश और दुनिया में छाएंगे जब आपकी उस पवित्रता, उस ज्ञान, उस प्रौद्योगिकी और उस नवाचार को लेकर के दुनिया आपको निहारे, देखे और इस संस्थान आप पर गर्व महसूस कर सके। मुझे लगता है कि आप इस संस्थान के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के बाहर निकलेंगे, क्योंकि आज अभी जिस तरीके से अभी चर्चा कर रहे थे निदेशक महोदय की 1383 डिग्रियाँ आज प्रदान हुई हैं और इसमें 860 बीटेक के हैं, 304 छात्र एमटेक के हैं, 83 MCA के हैं और 39 MBA हैं, 18 MSc हैं और 79 छात्र PhD हैं और डिग्री प्राप्त करने वाले इसमें 14 तो स्वर्ण पदक है स्नातक में और स्नातकोत्तर स्तर पर 30 स्वर्ण पदक है और मेधावी छात्रों में 25 प्रायोजित स्वर्ण पदक आज आपने प्राप्त किए हैं, डिग्री के साथ मेडल प्राप्त किए हैं। मैं इन छात्रों से कहना चाहता हूँ, पहले तो कोई स्थान बना पाना ही बहुत मुश्किल है,
लेकिन कुछ बन जाना, कुछ पा लेना, फिर उसकी गरिमा बनाए रखना और बढ़ाने की चुनौती हर कदम पर अब आपके सामने है। मेरी शुभकामना, जितने भी आप स्वर्ण पदक विजेता हैं, मैं आपको अलग से शुभकामना देना चाहता हूँ। अब आपका जीवन रुकना नहीं चाहिए। ये जो पदक आपको प्राप्त हुए, एक के बाद एक पूरा मैदान आपके सामने खुला है, खाली है, कितना दौड़ सकते हो अपनी ताकत के साथ। अब ये रुकने का और पीछे झुकने का नाम नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज आपके शिक्षकों के मन में भी कितनी अंदर से कितनी खुशी है। मैं भी एक सामान्य शिक्षक से यहाँ शिक्षा मंत्री के रूप में मैं भी यात्रा रही, मैं समझ सकता हूँ मेरे आचार्यों के कितने सामर्थ्य है और उनके मन में कितना अपने बच्चे से भी, जब उसका छात्र एक अध्यापक का, एक आचार्य का छात्र जब प्रगति करता है तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा खुशी और सुख अनुभव अध्यापक करता है। मुझे भरोसा है कि आज उनके मन में, क्योंकि आपको पढ़ाया है, वह बहुत कई वर्षों तक आपके साथ आदान प्रदान विचारों के साथ तमाम अनुभव बांटे होंगे और निश्चित रूप से उनको भी खुशी होगी जहाँ आपके जाने का उनके मन में एक कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा होगा कि मेरा ये अच्छा छात्र है, अब जा रहा है, तो वही खुशी का भी अवसर होगा कि नहीं, उनको भरोसा है कुछ ज़रूर करेगा। और जब आप कुछ ज़रूर करते हैं तो आप समझ सकते हैं न केवल आप करते हैं, न केवल आपके परिवार को उसकी खुशी होती है, न केवल आपके आचार्यों को खुशी होती है, बल्कि देश को खुशी होती है, हमारे विचार को खुशी होती है, हमारे उस विजन को खुशी होती है, हमारे मिशन को ताकत मिलती है। और मुझे भरोसा है कि जब मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जीवन मूल्यों की बात आप 24 घंटे अपने मन मस्तिष्क में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट वाली जो बात है उसको 24 घंटे अपने जीवन में संजो करके रखना चाहिए। नेशन हमारे लिए फर्स्ट है और कैरेक्टर भी मस्त है। नेशन फर्स्ट के लिए कैरेक्टर मस्त है। कैरेक्टर, चरित्र, कौन सा चरित्र, वो कौन से जीवन मूल्य हैं। केवल प्रैक्टिस की दौड़ से हटना है। आज हमको केवल प्रैक्टिस की दौड़ में नहीं जाना है, हमको पेटेंट की दौड़ में आना है, क्योंकि आपको नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाले लोगों में अपने को स्थापित करना है। और इसलिए ये चुनौती भी है आपको, लेकिन जैसे मैं अभी देख रहा था आगे कि आपने हर चुनौती का मुकाबला किया है। आपने कोविड में भी बहुत सारी चीज़ों को किया है। मैं अभी जब मैंने पता किया और मैं सभी संस्थानों के बारे में मैंने अपनी रिपोर्ट देता हूँ तो मुझे खुशी है। और मैं डायरेक्टर को और अपनी पूरी टीम को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि कोविड के समय भी आप चुप नहीं रहे हैं। आपने बहुत सारे निर्माण के काम किए हैं, ऐसे ऐप तैयार किए, ऐसी चीज़ों को तैयार किया जिसको देश को जरूरत थी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। ये काम आपका लगातार आगे बढ़ता रहे। मैं छात्रों आपसे जरूर चाहता हूँ कि जहाँ जीवन मूल्यों को आप 24 घंटे अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे, वो आपको ताकत देंगे। आपके जीवन मूल्य खूबसूरती है, वो आपका गहना है, वो आपकी ताकत है, वो आपको कमजोरी नहीं हो सकता, वो आपको ताकत देता है। आपके जीवन मूल्य, भारतीय जीवन मूल्य हमेशा ताकत देते हैं, मानवता को ताकत देते हैं, आपके मन मस्तिष्क को ताकत देते हैं। लेकिन जरूर मैं चाहूँगा कि आप खुद को लगातार अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें और एजुकेट करते रहें। यदि आप इन तीनों को नहीं करेंगे तो आप आउटडेट हो जाएंगे। और इसलिए ये बहुत जरूरी है।
request Professor D.P. Singh, Chairperson, I request the Chairperson of the Board, Professor D.P. Singh, to award the Institute gold medals. I request the Chairperson, I request Professor D.P. Singh, Chairperson, Board of Governors of the Institute, to declare the 17th annual convocation closed. I hereby declare मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. The academic procession will now leave the convocation hall. I request in the hall to all present in the hall to please keep standing till academic procession leaves the hall. Thank you.